morning to everybody. Today we will just continue with the chapter we started on Saturday, and the chapter was on the face of it. And we have to continue from page number 63, middle of the page. But before that, I would just like any student of the class who can just summarize the part we did in brief. Who would summarize? Yes, Akarshita. Yes, ma'am. So in the previous class, we have studied about that how there is boy named Derek. He suffered from a disability, and the world had made him very harsh and cruel. And he is always surrounded by the thought that people are talking about him, and he sees negativity in everything. Now there is Mr. Lamb, who is the owner of Crab Apples. He is a very optimistic person, and he sees positivity in everything. He's so transparent that even his house doesn't have curtains, and he doesn't like to shut off anything, whether it is light, whether it is darkness, or it is the sound of rain. He is a very positive person, and we even know about few characteristics of Derry's mother, and how he have been treated, and the most important thing of this chapter that we realize is that in spite of having disabilities, physical disabilities, we should not treat people unequally, because pain is not about how disabled they are, but it is how they feel about that. Yes, very good. So it is not the actual pain that hurts you more than the actual pain, more than the physical impairment. It is how the others treat you, whether they pity you or actually what is required is empathizing, not sympathizing with people. So Derry is a kind of a child who is over obsessed with his handicap. He thinks only about his handicap. He thinks only of his face, which has been burnt. And unlike Mr. Lamb, who is very optimistic, who always looks at the positive side of the thing, encourages Derry also to do the same. And for the first time in his life, Derry actually talks about his handicap with Mr. Lamb. He opens up in front of Mr. Lamb. Otherwise, he does not like socializing at all. Okay, but then uh, we were on page number 63, and we have to start from the middle of the page. He says, anybody come, so have you. So he's talking about friends. He says that according to Mr. Lamb, every human being is his friend. Each and every person is his friend. This is what he talks about. He says that friends everywhere, people come in, everybody knows me. He says, I am known to everyone, and everybody is welcome in my house. He's very open minded, and he doesn't have any curtains, as we have discussed the other day, and Adarshita just summarized that he's very transparent, he's very open minded, he doesn't like shutting things in, he doesn't like shutting things out. So he says, but I'm not, we have to continue from Derry's statement. He says, but I am not a friend. Certainly you are. So far as I am concerned, what have you done to make me think you are not? वो कहते हैं कि ऐसा तुमने क्या किया है कि मैं सोचूं that you are not my friend. You are my friend. I consider each and every person as my friend. You don't know me. You don't know where I come from or even what my name is. Why should that signify? He says it is not important. It is not necessary that you have to be acquainted to people in order that they befriend you or in order that they become your friend. ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को जानते हो या पहचानते हो कि वो तभी आपके friends बने. This is what Mr. Lamb says. He says, do I have to write all your particulars down and put them in a filing box before you can be a friend? वो कहते हैं कि सारे तुम्हारे पर्टिकुलर्स, तुम्हारा नाम, तुम्हारे मदर्स नेम, फादर्स नेम, तुम क्या करते हो, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ये सब कुछ मुझे नोट करने की ज़रूरत है तुम्हें फ्रेंड बुलाने से पहले. ठीक है. So he says, I suppose not. No. You could tell me your name if you chose, and if not, and not if you didn't. वो कहता है अगर तुम चाहते हो मुझे अपना नाम बता दो. If you don't feel like telling your name, I won't mind it. You can still be my friend. Derry, only it's Derek, but I hate that. Derry, if I'm your friend, you don't have to be mine. I choose that. वो कहते हैं ठीक है, मेरा नाम डेरी है, वैसे डेरेक है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता. आई लाइक व्हेन पीपल कॉल मी डेरी. ठीक है, पर ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आप, ठीक है, आप मुझे अपना फ्रेंड समझते हो तो मैं भी आपको समझूँ. आई डोंट, आई चूज दैट. ठीक है, आई विल नॉट have you called as my friend? Have you labeled as my friend? Certainly. I might never come here again. You might never see me again, and then I couldn't still be a friend.
वो कहता है हो सकता है मैं आज के बाद कभी वहाँ पे आऊँ ना, हो सकता है आप मुझे आज के बाद कभी मिलो ना, फिर तो हम फ्रेंड्स नहीं रहेंगे. वाई नॉट? हाउ कुड आई? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. Since we meet so many people in your life. ठीक है, आप सड़क से गुजर रहे हो, आपको हजारों लोग मिलते हैं, दिखते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बात भी चाहे कर लेते हो किसी से, पर ये इसका मतलब ये तो नहीं हुए कि वो आपके फ्रेंड्स हुए. डजंट मीन दे आर एनिमीज ईदर, डज इट? तो क्या वो हमारे दुश्मन हुए? दिस इज व्हाट मिस्टर लैम आस्क्स. फिर दुश्मन कहलाएंगे क्या वो? नो, दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल. ही सेज दैट people are never just nothing, never. He says you cannot negate the value of people. You have to realize the importance of people. आप लोगों को nothing नहीं कह सकते हो, ठीक है? This is what Mr. Lamb advises Derry. Okay, people are never nothing. Okay, there are people, some people I hate that would do more harm than any bottle of acid. Acid only burns your face. Only like a bomb only blew up my leg. There's worse things can happen. You can burn yourself away inside. After I'd come home, one person said he'd have been better off stopping in there in the hospital. He'd be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. तो वो बोलता है कि एसिड से तो आपका सिर्फ फेस ही जला है, ठीक है, मगर बट if you have hatred in your heart, then that is going to do more harm to you than any bottle of acid. अगर आपके मन में नफरत भरी हुई है तो वो एसिड से ज्यादा आपको नुकसान करती है, ठीक है, बिकॉज इट करोड्स यू फ्रॉम इनसाइड. वो जो करोजन होगी वो एसिड से भी ज्यादा होगी क्योंकि वो आपके अंदर है, ठीक है. इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट ही एडवाइजेस एंड डेरी. ही सेज उससे ज्यादा लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माय लेग. कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, वो तुम्हारा एसिड से फेस जला है, ऐसे ही a bomb only. He says this is insignificant. It is not more important than what you have other things in your life. जो आपकी लाइफ में और चीजें हैं, जो आपके पास और चीजें हैं, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है. I feel this is insignificant. That is why he says only acid only burned your face and a bomb only blew my leg. ठीक है, मेरी एक लेग ही गई है ना, आर्टिफिशियल लेग मैंने लगा ली है, अदरवाइज सब कुछ है मेरे पास, ठीक है. वो कहते हैं कि लोग ना बहुत अजीब अजीब सी बातें करते हैं. दिस इज व्हाट डेरी सेज. कहते हैं हॉस्पिटल में एक लेडी कहती है कि इसको ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो इसके जैसे ही हो, मतलब जो जो एसिड से बर्न हुआ है वो और जले हुए लोगों के साथ ही रहे, ठीक है. जैसे कोई ब्लाइंड है तो वो ब्लाइंड के साथ ही रहे, ठीक है. और जो इफ समबडी इज मेंटली चैलेंज तो वो मेंटली चैलेंज के साथ ही रहे. एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, दैट्स राइट. What kind of a world would that be? वो कहते हैं ये कैसी दुनिया होगी, ठीक है, अगर एक जैसे लोग सब एक साथ रहेंगे तो कैसी दुनिया होगी. At least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. वो कहते हैं चलो इससे तो अच्छी होगी. डेरी ये सोचता है इससे अच्छी होगी. क्यों अच्छी होगी? क्योंकि कोई आपको घूरेगा नहीं, क्योंकि कोई आपसे अलग नहीं होगा, ठीक है, कोई आपके बारे में बात नहीं करेगा, आपकी पीठ पीछे बात नहीं करेगा, क्योंकि सब आपके जैसे ही होंगे. सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस. तो मतलब अगर किसी और का फेस जला हुआ है तो तुम उनके जैसे ही हो, कोई फर्क नहीं है. जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, यू नो, डू यू थिंक यू नो द वे यू लुक लाइक, योर अपीयरेंस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स. सिर्फ आपका अपीयरेंस ही मैटर करता है, आप वही हो जैसे आप दिखते हो और उसके अलावा कुछ नहीं. Everything's different and everything's the same, but everything is different itself. कहते हैं हर चीज अलग है. ये आपको सोचना है इस चीज के बारे में. आप सिर्फ दिखते हो जैसे, आप सिर्फ वो नहीं हो, आप क्या सोचते हो, आपके क्या एक्शंस हैं, ठीक है. दिस इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ यू लुक. हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट. कहते हैं ये जो इतनी फिलोसफिकल आप बातें करते हो ये कैसे आते हैं आपके दिमाग में, ठीक है. हाउ डू यू मेक ऑल दीज थिंग्स आउट? बाय वॉचिंग, बाय लिसनिंग एंड बाय थिंकिंग. I would like a place like this, a garden. I'd like a house with no curtains. उसको अच्छा लग रहा है यहाँ पे. For the first time in his life, he has developed a kind of a liking for someone, not only for Mr. Lamb but also the kind of place in which he is living. ठीक है, सिर्फ मिस्टर लैम के लिए लाइकिंग नहीं है उसकी, जिस जगह पे वो रह रहा है उसके लिए भी लाइकिंग है. वो बोलता है मुझे ऐसा घर चाहिए जिसमें कोई कर्टन्स ना हो. मैं भी काश एक ऐसा गार्डन होता मेरे पास जैसा आपके पास है, ठीक है. द गेट्स ऑलवेज ओपन. तो मिस्टर लैम कहते हैं आप कभी भी आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कम एनी टाइम, बट दिस इजंट माइन. वो कहता है पर मैं इसको ओन नहीं करता हूँ, दिस इज नॉट माई गार्डन.
एवरीथिंग्स योर्स इफ यू वांट इट, व्हाट इज माइन इज एनीबडीज। वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी ओनरशिप का क्लेम नहीं करता, जैसे ये घर मेरा है वैसे ये सबके लिए ही है, हर किसी के लिए, ठीक है। सो आई कुड कम हेयर अगेन इवन इफ यू आर आउट, आई कुड कम हेयर। वो कहता है अच्छा ठीक है, अगर आप कभी ना हो तो भी मैं आ सकता हूँ। सर्टनली यू माइट फाइंड अदर्स हेयर ऑफ कोर्स। ओ, वो कहता है कि हाँ ठीक है, हो सकता है मैं ना हूँ, पर जैसे तुम आओ वैसे और भी लोग यहाँ पे आए हो। सो डेडी डजंट लाइक इट, क्योंकि उसको सोशलाइज करना अच्छा नहीं लगता। ही डजंट लाइक बीइंग सराउंडेड बाय पीपल, ही डजंट लाइक मिक्सिंग विद पीपल, ही डजंट लाइक टॉकिंग टू पीपल। वो कहता है अच्छा आप नहीं होगे और लोग होंगे तो फिर तो मैं नहीं आऊंगा। सो दैट इज व्हाई ही सेज ओ वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड। ही सेज दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, this is the advice Mr. Lamb gives him, that you should not mind people and you should not be bothered by people around you, ठीक है, तुम्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए इससे। आई वुड इट वुड स्टॉप देम, कहते हैं मुझे तो नहीं फर्क पड़ेगा मगर वो रुक जाएंगे, वो आना बंद कर देंगे अगर मैं यहाँ पे हुआ तो। दे वुड माइंड मी व्हेन दे सॉ मी हेयर, दे लुक एट माई फेस एंड रन। वो कहते हैं जब वो मेरे को देखेंगे ना यहाँ पे मुझे, तो वो मेरा फेस देखेंगे और भाग जाएंगे यहाँ से, ठीक है। दे माइट नॉट, यू वुड हैव टू टेक दैट रिस्क, यू शुड लर्न टू टेक रिस्क इन लाइफ, ठीक है। वो कहता है तुम्हें ये रिस्क लेना पड़ेगा, हो सकता है वो माइंड करें, हो सकता है वो माइंड ना करें, सो वुड दे, और उनको भी ये रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो आके तो देखो तुम पहले यहाँ पे। नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल अदर फ्रेंड्स बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट। वो कहता है नहीं, रिस्क आपका होगा और किसी का नहीं, क्योंकि अगर आप मुझे यहाँ पे रखोगे देन यू आर गोइंग टू लूज ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं रहना चाहता, ठीक है। इफ दे कैन हेल्प इट, अगर जहां तक उनके बस में है, मेरे आसपास नहीं रहना चाहता कोई। I have not moved. How can you say that? This is what Mr. Lamb says. आप कैसे कह सकते हो ऐसे? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ कब से, मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं। No. When I go down the street, the kids shout, "Lammy lamb," but they still come into the garden, into my house. It's a game. They're not afraid of me. Why should they be? Because I am not afraid of them. That's why not. वो कहते हैं जब मैं जाता हूँ घर से बाहर, मुझे बच्चे चिढ़ाते हैं, मेरे को नाम क्या लेते हैं, लेमी लैम्ब, वो देखो लंगड़ा आ गया लेमी लैम्ब, पर मैं नहीं माइंड करता। फिर भी वो बच्चे जो मेरे को लेमी लैम्ब बुलाते हैं मेरे गार्डन में आते हैं, ठीक है। सो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, और मैं भी नहीं उनसे डरता हूँ, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ अ म्यूचुअल काइंड ऑफ अ थिंग। डिड यू गेट योर लेग blown off in the war? Yes. How will you climb on a ladder and get the crab apples down there? वो कहते हैं आपकी एक टांग नहीं है, एक आपकी आर्टिफिशियल लेग है। हाउ यू गोइंग टू क्लाइंब अप द लेडर? आपने बोला कि मैं लेडर पे चढ़ के क्रैब एपल्स उतार के उनकी जैम बनाऊंगा, जेली बनाऊंगा, पर कैसे करोगे? हाउ यू गोइंग टू डू इट? Oh, there's a lot of things I have learned to do and plenty of time for it. Years. I take it steady. He says, I do each and everything very gradually, very steadily. मैंने इतने सालों में ये चीज़ सीख ली है, ठीक है। With time, with the passage of time, I have learned to do so many things. If you fell, underline this, and broke your neck, you could lie on the grass and die if you were on your own. वो कहता है अगर तुम गिर गए, तुम्हारा नेक टूट गया, लेडर से गिर गए, वहीं पर तुम गिरे रहोगे, वहीं तुम मर जाओगे, ठीक है। इफ यू आर लेफ्ट, अगर अकेले ये सब करोगे। वो कहता है आई कुड, ही गिव्स अ वेरी क्रिप्टिक काइंड ऑफ एन आंसर। वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, आई कुड डाई लाइक दैट, ठीक है, हो सकता है ऐसा हो जाए। यू सेड आई कुड हेल्प यू इफ यू वांट टू, but my mother will want to know where I am. It's 3 miles home across the fields. I'm 14, but they still want to know where I am. So he says, I have to go back. Why does he have to go back? Why does Harry have to go back? Ma'am, because his mother might be waiting for him. Yes, his mother might be worried. She might be waiting for him. Okay, so he's concerned about his mother and feels he has to go back, and he has to at least inform his mother where he was. And if he wants to come back, he has to tell his mother. मेरी मदर को बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा घर कहता है यहाँ से 3 मील दूर है, तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं जाके क्या वापस आ सकता हूँ? ठीक है, मैं जाता हूँ और मैं वापस आता हूँ, and then I'll help you. Help you in doing what? In picking up those, plucking those crab apples. ठीक है। सो ही सेज आई एम मैच्योर इनफ, मैं 14 हूँ, तो वो सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, पर फिर भी मेरी जो रिलेटिव्स हैं, मेरी मदर है, मेरे पेरेंट्स हैं, वो जानना चाहते हैं, वो मेरे बारे में चिंता करते हैं, इसलिए पीपल वरी। डेरी सेज पीपल फस, ठीक है। वो बड़ा जेन्युइनली कह रहा है मिस्टर लैंग कि लोग वरी करते हैं, इफ दे आर योर पेरेंट्स, तो तुम्हारी चिंता करना जरूरी है उनके लिए, ठीक है। अगर वो तुम्हारी चिंता करते, तुम्हारे पेरेंट्स चिंता करते, तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है। बट डेरी डजंट फील लाइक दैट, ही सेज पीपल फस। what do you mean by fussing? What is fussing? Fuss, people fuss.
To pay attention to unimportant things. Yes, excessive attention to things where sometimes it is not necessary. वो कहता है कि फालतू में attention इतनी देते हैं, इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं बड़ा हूँ, पर क्यों ऐसा करते हैं? So वो फिर कहता है ओके go back and tell them, जाओ बता के आ जाओ. It's 3 miles. It's a fine evening. You've got legs. वो कहता है 3 मील दूर है. वो कहता है ठीक है तो तुम्हारी टांगे सही सलामत है, भागो, जाओ और जाके वापस आ जाओ. ठीक है, और इतनी अच्छा मौसम है. Once I got home, they would never let me come back. कहता है एक बार मैं घर चला गया तो मुझे मेरी मम्मी ने वापस नहीं आने देना. ठीक है, once you got home, you would never let yourself come back. वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है. मिस्टर लैम कहता है तुम खुद ही नहीं वापस आना चाहोगे, क्योंकि तुम कहते हो कि मैं लोगों के साथ बात नहीं करना चाहता, मैं लोगों के आसपास रहना नहीं चाहता. यू आर नॉट गोइंग टू कम बैक योरसेल्फ. दिस इज व्हाट आई फील. यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू. कहता है कि नहीं, आप जानते कैसे हो मुझे, आप अभी मैं फर्स्ट टाइम तो आपको मिला हूँ. हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू बी सो श्योर कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या करूँगा. नो, ओनली यू नो दैट. इफ आई चोज, इफ यू चोज, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू. कहता है मुझे सब कुछ नहीं पता तुम्हारे में, मैं नहीं कह सकता तुम्हारे बारे में सब कुछ. दे टेल मी, do you have to agree? I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have. Something just mine, like this garden. कहता मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं. जैसे ये गार्डन, उसको बहुत पसंद आ गया ये. ठीक है, I don't know what it is. You could find out how by waiting. वो कहते हैं तुम खुद पता लगा सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए. कैसे पता लगा सकते हो? By waiting, by watching, by listening. Sitting here or going there. I'll have to see to the bees. कहते तुम यहाँ बैठ सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मुझे अब अपने बी हाइव पे जाना है, मुझे देखना है. ठीक है. Those other people who come here, do they talk to you, ask you things? Some do, some don't. I ask them. I like to learn. वो कहते जो और लोग आते हैं यहाँ पे, क्या वो आपसे बातचीत करते हैं? ठीक है, क्या जानना चाहते हैं वो आपके बारे में? ठीक है, या यहाँ के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में. वो कहते हैं कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं भी पूछते, पर मैं पूछता हूँ. क्यों? बिकॉज आई लाइक टू लर्न. ही सेज बिकॉज ही सेड दैट आई एम इंटरेस्टेड इन ईच एंड एवरी पर्सन. हर कोई जो आता है यहाँ पे, मैं उसको अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ. मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स ही हैं. लोग मुझे बनाना चाहे ना बनाना, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता. लोग मुझसे बात करें ना करें, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता. बट आई लाइक टू लर्न. आई डोंट बिलीव इन देम. आई डोंट थिंक. वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे हो. Derry says, I think you are lying. I think nobody ever comes here. You are here all by yourself and miserable. And no one would know if you were alive or dead and nobody cares. कहता आप झूठ बोल रहे हो. ठीक है, कोई नहीं आता यहाँ पे, आप यहाँ पे अकेले रहते हो, बुरा हाल है आपका, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप जिंदा हो या मर गए हो. जब आप मर जाओगे किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा. यू थिंक वॉट यू प्लीज, यू कैन थिंक वट एवर प्लीजेज यू. जो आपको अच्छा लगता है आप वो सोच सकते हो. ठीक है. ऑल राइट देन, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स. कहता ठीक है, अगर लोग यहाँ पे आते हैं, आई वुड लाइक टू नो सम ऑफ द नेम्स. कौन कौन लोग आते हैं, मुझे कुछ नाम बताओ. व्हाट आर नेम्स? टॉम, डिक और हेनरी. कहते नाम में क्या रखा है? I have to go now. I am off down to the beach. I think you are daft. You are crazy. तो मुझे लगता है कि आप तो ना crazy हो, थोड़े पागल हो. This is what Derry says. That's a good excuse. कहते हैं यहाँ पे ना आने का ये अच्छा बहाना है. ठीक है. What for? You don't talk sense. Good excuse not to come back. And you have got a burnt up face, and that's other people's excuse. कहते हैं बहुत अच्छा बहाना है ना आने का. और लोगों का excuse जो तुम सोचते हो क्या है कि तुम्हारा burnt face है इसलिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे. This is also one of your excuses, and this is also others people's excuse. You are like the others. You like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it. And if you're not frightened, you think I'm ugly as a devil. I am a devil. Don't you? वो जोर से चिल्ला के कह रहा है. वो जोर से चिल्ला के कह रहा है कि तुम भी लोगों के जैसे बात करते हो और लोगों के जैसे वो सब बात करते हो, तुम भी वैसे बात करते हो. ठीक है. इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर, तुम भी मेरे फेस को देख के डरते हो. अगर डरते नहीं हो तो तुम सोचते हो कि मेरा बड़ा आई एम द अगलीस्ट पर्सन दैट यू हैव एवर सीन. मेरे से ज़्यादा भयानक, मेरे से ज़्यादा बुरा कोई नहीं दिखता. और चिल्ला के बोल रहा है वही. ठीक है. यू थिंक आई एम अ डेविल. ठीक है. मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई. ही हैज़ गॉन टू हिज बीज. वो कोई जवाब नहीं देता, वो अपने बी हाइव के पास चला जाता है. देन क्वाइटली डेरी सेज, ही रियलाइजेज दैट वट एवर ही हैज सेड इज नॉट राइट. कि वो ऐसा नहीं सोचता है, उसने पता नहीं ऐसा क्यों कहा. वो कहता है नो यू डोंट, आई लाइक इट. कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं सोचते. ठीक है. मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है.
And then Derry gets up and shouts. He says, I am, वो जोर से चिल्ला के उसको बताता है, किसको बता रहा है? Mr. Lamb को. I am going, but I'll come back. You see, you wait. I can run. I haven't got a tin leg. I'll be back. कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा. मेरी टांगे मेरी सही सलामत है. मैं भाग के जाऊँगा. मेरी कौन सा tin leg है जो मैं जा नहीं सकता और आ नहीं सकता. 3 मील भाग के जाऊँगा और भाग के वापस तुम्हारे पास आऊँगा. I'm definitely going to come back. बोल के चला था मिस्टर लैम. ही इज नॉट इवन श्योर whether Mr. Lamb has heard it or not. ठीक है, पर वो उनको बोल के जा रहा है कि मैं वापस आऊंगा. डेरी runs off. Silence. The sounds of the garden again. मिस्टर लैम ने सुन लिया है जो डेरी ने बोला है, एंड ही सेइंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है, देयर माय डियर्स, दैट्स यू सीम टू, यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक. तो सब लोग ही कहते हैं, क्या कहते हैं? आई विल कम बैक. दे नेवर डू दो, मगर कोई नहीं आता. Not them, never do come back. कोई नहीं आता. And the garden noise fades away. So the first scene was in Mr. Lamb's garden. Now scene 2 is in Derry's home. वो अपने घर पहुंच गया, ठीक है, Derry's house. His mother says, think I don't know about him. You think I haven't heard things. Now his mother, even though they have shifted to this place recently, थोड़ी देर पहले इस जगह पे आए हैं, मगर फिर भी मिस्टर लैम्ब के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना हुआ है लोगों से, ठीक है, कि वो थोड़ा क्रेजी है, वो अकेला रहता है, ऐसे दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. एंड शी टेल्स हर सन कि वहाँ पे वापस नहीं जाना, ठीक है. शी टेल्स हिम, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हेयर. Now, can you find out the difference? Can you find out the relevance of this statement? You shouldn't believe all you hear. Anyone from among the online students or offline? We have 2 offline students also. हाँ, ये 2 बैठे हैं. हाँ जी, करणदीप एंड गुरदीप. चलो बताओ. You shouldn't believe all you hear. What do you mean by that? इसकी यहाँ पे क्या relevance है बेटा? When Derry makes this statement, इसको बंद करके आओगे, close the door. हाँ, ये ऐसा कर शिता? Yes, ma'am. According to me, Derry's mind has been changed by Mr. Lamb, and he's so optimistic now and so changed that he thinks that we should not believe what we hear. Instead, we should feel. Yes, very good. So because this was the statement, this was the thing which Mr. Lamb had told Derry. उसने बोला था उसको कि जो सब कुछ तुम सुनते हो, जो सब आप सुनते हो, आप क्या हर चीज में विश्वास करते हो? आपको हर चीज में विश्वास नहीं करना, हर सुनी सुनाई चीज में, ठीक है. सो नाउ दिस काइंड ऑफ अ चेंज, दिस काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन हैज कम इन डेरी नाउ. उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ मिस्टर लैम, ठीक है. बीइंग टोल्ड, वार्नड, we have not lived here 3 months, but I know what there is to know, and you are not to go back there. कहती है हमें 3 महीने हुए हैं यहाँ पे आए, पर तुम वापस नहीं जाओगे. मुझे पता है, मुझे लोगों ने वार्निंग दी है that we are not to mix up with people like Mr. Lamb. What are you afraid of? What do you think he is? An old man with a tin leg, and he lives in a huge house without curtains, and he has a garden, and I want to be there. कहता पहली बार जिंदगी में मुझे कहीं जाकर अच्छा लगा. आपको लगता क्या है वो कौन है? He's just a helpless man, a handicapped person with a tin leg, and but the kind of a house he's having with no curtains on the windows, the kind of a garden he's having, I like it there. I like to listen to things. I like to listen and look. Listen to what? Bees singing. So he's so much of, you know, the Mr. Lamb has had so much of an impact of him. उसको भी अब ऐसे लगता है that bees don't buzz, but there is a music, kind of music that they produce. So bees sing. I like him talking. मुझे उनका बात करना पसंद है. मुझे bees का गुनगुनाना, humming sound पसंद है. And what's he got to say to you? Things that matter. Things nobody else has ever said. Things I want to think about. वो कहते हैं ऐसा क्या बोला उन्होंने तुम्हें? क्या बात करते हैं वो तुमसे? वो कहते हैं वो चीज़ें जो मैटर करती हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो किसी ने आज तक मुझसे नहीं कही हैं, ठीक है, जो वो चीज़ें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ, ये सब बातें मेरे से वो करते हैं. देन यू स्टे हेयर एंड डू योर थिंकिंग. कहते हैं सोचो, सोचना है ना, यहाँ बैठ के सोचो. दिस इज वॉट हिज मदर सेज. यू आर बेस्ट ऑफ हेयर. यहीं पर बैठो, यहीं पर. आई हेट इट हेयर. You can't help the things you say. I forgive you. It's bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. उसको वो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे. I hate sitting here. वो कहती तुम तुम्हारे को मैं ब्लेम नहीं करूँगी, ठीक है. यू आर हैंडीकैप्ड, यू डोंट लाइक योर सेल्फ बिकॉज ऑफ योर बर्न फेस, तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी, पर तुम यहीं रहोगे. It's got nothing to do with my face and what I look like. I do underline this, very very important. Such kind of a radical transformation that has come, a sea change that has come in Derry. वो कहता है
डोंट केयर अबाउट एंड इट इजंट इम्पॉर्टेंट, कहता मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है मैं कैसा दिखता हूँ, इट्स व्हाट आई थिंक एंड फील एंड व्हाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर, जो मैं सोचता हूँ वो मैटर करता है। ये सब कुछ वो क्यों बोल रहा है, ये कहाँ से आई उसके मन में बातें, ये किसकी वजह से आ रही है ये सब बातें, बिकॉज ऑफ whom? Mr. Lamb, yes, Mr. Lamb. After, and I'm going back, कहता आप मुझे रोक नहीं सकते हो, only to help him with the crab apples, वो लेडर पे बेचारे अकेले चढ़ रहे हैं, मुझे उनकी हेल्प करनी है, only to look at things and listen, मुझे वहाँ पे जाना है, but I am going, you will stop here, oh no, underline this line also very important, because if I don't go back there, I'll never go anywhere in this world again. अगर मैं वहाँ वापस नहीं गया तो मैं आज के बाद अपनी ज़िंदगी में और कहीं वापस नहीं जा पाऊंगा, तो मुझे जा लेने दो। एंड ही जस्ट गोज अवे विदाउट पेइंग एनी हीड टू व्हाट हिज मदर टेल्स हिम, वहाँ से वो चला जाता है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्टेड, सो ही सेज आई वॉन्ट दिस वर्ल्ड नाउ, अदरवाइज ही वॉन्टेड टू रिमेन अलोन, वो अकेला रहना चाहता था, पर पहली बार वो कहता है मुझे ये वर्ल्ड चाहिए, मुझे ये वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, ठीक है। आई वॉन्टेड एंड देन साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फेड्स, वो ब्रेथलेस हुआ पड़ा भाग के चला गया। ये अब थर्ड सीन कहाँ पर है, लास्ट सीन, ओनली अ फ्यू लाइन्स अगेन इन मिस्टर लैम्स गार्डन, वो वापस वहाँ पे पहुँच गया है। मिस्टर लैम्स गार्डन, गार्डन साउंड्स द नॉइज ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल समथिंग डाउन, अ ब्रांच शिफ्टिंग, ब्रांच, वो क्रैब एप्पल्स तोड़ रहे हैं, ब्रांचेस हिल रही हैं, ठीक है। मिस्टर लैम्प से स्टेडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, ठीक है, वो ऐसे हिला रहा है ब्रांच को और एप्पल्स गिर रहे हैं। एंड अगेन दैट्स इट, एंड वो कहते हैं हाँ ठीक है, और एंड देन व्हाट हैपेंस, सडनली देयर इज अ क्रीकिंग साउंड, व्हाट डू यू मीन बाय क्रीक, व्हाट इज क्रीक, अ क्रीक, अ क्रैश, व्हाट इज क्रीक, व्हाट इज क्रीक, व्हाट काइंड ऑफ अ साउंड इज क्रीक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या होता है क्रीक? यस, अ लाउड साउंड कम्स, ठीक है, बड़ी जोर से आवाज आती है, और एक क्रैश, द लेडर फॉल्स बैक, लेडर गिर जाती है मिस्टर लैम्प के साथ, ठीक है। अ थंप, जोर से गिरने की आवाज आती है, जो ब्रांच उन्होंने पकड़ी होती है वो वापस जाती है, इट क्रीक्स, वो टूट जाती है, देन देयर इज साइलेंस, और उसी टाइम पे डेरी वहां पे आता है, स्टिल पेंटिंग, स्टिल ब्रेथलेस, क्योंकि वो भाग के आए। यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुडंट एंड दे सेड, सबने बोला मैं नहीं आऊंगा, आपने भी बोला मैं नहीं आऊंगा, बट आई हैव कम बैक, आई वांटेड। वो एकदम से वहां देखता है और देखता है मिस्टर लैम्प नीचे गिरे हुए हैं, मिस्टर यू हैव, एंड ही रन्स टू द ग्रास, ही स्टॉप्स, ही नील्स, मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, यू फेल, वो कहता है कोई बात नहीं, आप डरो नहीं, आप घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ, इट्स ऑल राइट, आई एम हेयर, इट्स ऑल राइट, बट there is total silence, there is no response from Mr. Lamb. I came back, Lamy Lamb, I did come back, and he begins to weep. Why did he begin to weep? Because Mr. Lamb is no more, he is dead.